सो ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਜੀ ਮੈਥ ਦੀ ਸ਼ੀਟ ਨੰਬਰ 3 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਹੀ 3 ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਕਲੈਟ ਲੇਟ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਕਰ ਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟਸ ਪਾ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੀਚਰ ਦੀ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਬੁੱਕਲੈਟ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੀਸਰੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵਾਂ। 10th ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ 46। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਨੈਸ ਲਈ ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ 10th ਬੋਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, 10th ਬੋਰਡ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਊਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੰਨੇ ਸੌਖੇ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ। ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਲਓ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਸਿਮਿਲਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਏਰੀਆ ਰੇਸ਼ੋ ਥਿਓਰਮ ਲਗਾਣੀ ਹੈ। ਏਰੀਆ ਰੇਸ਼ੋ ਥਿਓਰਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਏਰੀਆ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ABC ਦਾ ਲੈ ਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾय ਏਰੀਆ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, DEF ਲੈ ਲਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਸਾਈਡ ਦੇ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਅਬ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਸਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ABC ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ DEF ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆ ਹੋਊਗੀ, ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆ, ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆ, ਔਰ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਸਾਈਡ ਦੇ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਕੁਅਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ EF ਦਿੱਤਾ ਤੇ BC ਦਿੱਤਾ, ਉੱਪਰ ਆਏ ਤਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ BC ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਊਗਾ EF ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਆ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਇਹ ਦੇਖ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, EF ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਵਾਂ, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ABC ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 64 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ 64 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਧਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 144, ਤੇ ਇਧਰ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤਾ BC ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾ BC ਬਟਾ EF ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। इधर स्क्वायर रूट आ जाऊगा, इधर स्क्वायर रूट आ जाऊगा, तो ਇਹਦਾ स्क्वायर रूट आ जाऊगा, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ BC बटा EF। अब 64 ਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 8, ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 12, ਬਰਾਬਰ ਹੈ BC ਆਪਾਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, EF ਕਿੰਨੀ ਹੈ 6। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 6 ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਏਕਮ 6, 6 ਦੂਣੀ 12 ਐ ਕੱਟ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੱਟ ਦੋ, 2 ਏਕਮ 2, 2 ਚੌਕੇ 8। ਸੋ BC ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ 4 ਆ ਗਈ ਜੀ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ 4, ਸੋ BC ਦੀ ਵੈਲਿਊ 4 ਆ ਗਈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਦੂਜੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ A ਐਂਗਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, B ਐਂਗਲ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਈਨ A cos B cos A sin B, ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ A cos B cos A sin B ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸਾਈਨ A ਮਾਈਨਸ B। ठीक है जी, आ सारी वैल्यू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये साइन ए माइनस बी होती है। तो उसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है करना है, सो याद रख लियो जी, ਤੁਹਾਡੇ पास मैं ऊपर लिखदा जी। सो इस चीज़ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ याद रख लियो, साइन ए माइनस बी ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ है दैट इज साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। तो आ वाली रकम सारी क्वेश्चन ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ है। ठीक है, तुसी फार्मूला तो आंसर की आ गया साइन ए माइनस बी। ए कितना जी थोड़े क्वेश्चन च 60, साइन 60 माइनस 30, सो आंसर आ गया साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री 1/2 होंदा है जी। साइन 30 डिग्री टेबल थोनू बनाना थोड़े टीचर ने सिखाता होना। सो दूजे क्वेश्चन का आंसर है 1/2। तो जे तुसी चाहो तो कली कली वैल्यू पुट कर लियो, तो 1/2 ही आएगा। सो ठीक हो गया जी, तुहानू मैं एक शॉर्टकट दस दिता। जदों असी सबजैक्टिव क्वेश्चनस करांदे सी उदों असी शॉर्टकट नहीं इदां दसदे, बट हुण असी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करा रहे हैं, दैन गो फॉर शॉर्टकट्स, टाइम भी बचेगा तो जिहड़ा हैगा बाकी औखे क्वेश्चन ते टाइम। एक कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन, ठीक है, राइट सर्कुलर कोन इदां दा हुंदा, आ इहदा कर्व सरफेस एरिया हुंदा ऑफ स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट आ वाली हुंदी है ना, एंड बेस डायामीटर, बेस डायामीटर जिहड़ा स्लांट हाइट 16, डायामीटर देखो 14 है, तो डायामीटर 14 है तो 7 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगा। ठीक है जी, आ हो गया। तो जिहड़ा उन्हें क्वेश्चन च किया तुहाडे पास द कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला हुंदा पाई आर एल
तो जे पाई आर एल है, पाई होगी 22/7, आर हो गया 7, एल होगी ਤੁਹਾਡੀ 16। तो ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ठीक है जी, 22 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 16 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੋ 352 ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਆ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਐਡਾ ਰੋਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। 16 ਨੂੰ 22 ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ 16 ਦੂਣਾ 32 ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, फिर एक छड़ के 16 दूना 32 लिखना, 2 5 ते 3 352। ठीक है, सो ये आराम ना हो गया जी, ईजीली, कोई दिक्कत वाली गल नहीं हैगी तुहाडे कोल। ठीक है जी, कलर मैं चेंज कर रहा बार बार कि जिहड़ा हैगा नैक्सट ते जाइए तो तुहानूं पता लग जाए तुहाडे कोल। कहंदा 30 सेंटीमीटर का एक बेलन। ठीक है जी, ध्यान नाल देखियो जी इस क्वेश्चन नूं। 30 सेंटीमीटर का बेलन अर्ध व्यास इन्ना पिघला के नवां बेलन बनाया हैगा, तां नवें बेलन की उचाई। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵੇਲਣ ਹੈਗਾ ਆ ਮੇਰਾ ਵੇਲਣ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵੇਲਣ ਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 30 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਇਹਦੀ ਉਚਾਈ ਸੀਗੀ 30 ਸਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ 14 ਸੀਗਾ, ਅਰਧ ਵਿਆਸ 14 ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆਹ ਵੇਲਣ ਹੈਗਾ ਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਲਟ ਕਰਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਲਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵੇਲਣ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਅਰਧ ਵਿਆਸ 7 ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਰਧ ਵਿਆਸ 7 ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹਾਈਟ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। अर्ध व्यास घटाता, मटीरियल तो उन्ना ही लिया ना, 7 सेंटीमीटर ਇਹਦਾ रेडियस करता, तो हाइट ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ठीक है, सो ਇਹਦਾ हाइट ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, तो ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਹੀ ਦੂਜਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਵੋਲਿਊਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ठीक है, पहले ਦੀ वॉल्यूम पाई r1 स्क्वायर h ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਦੂਜੇ ਦੀ वॉल्यूम ਦੇ ਹੋਊਗੀ पाई r2 स्क्वायर h2। ठीक है, इतने h1 कर लो, इतने h2, h1 मैंने पहला, रेडियस r1 मैंने पहला, h2 मैंने दूजा, पाई ना पाई तो असीं कैंसल ही करता। आ काहदा फार्मूला ला रहे हैं जी, ये वॉल्यूम का ला रहे हैं, इनू पिघला। जो तुसीं 10 ग्राम सोना दिता दुकानदार नूं, तुसीं क्या गहने बनाओ तो 10 ग्राम के 10 ग्राम ही होगा, 10 ग्राम के 18 ग्राम थोड़ी बना दूगा वो। तो यदा मतलब जिन्नी ਇਹਦੀ वॉल्यूम सी इनू ही पिघला के बनाया ना, उन्नी वॉल्यूम तुहाडे पास उधर हो जूगी। हुण r1 का स्केयर, रेडियस का स्केयर, रेडियस कौन है पहले वाले केस 14, सो 14 गुणा 14 आ गया। हाइट पहले वाले केस कितनी है 30। ठीक है, r2 दूजे वाले केस रेडियस वो हैगा 7 गुणा 7, हाइट आप दूजे वाले केस कढ़नी है। सो 7 एकम 7 आ गया, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 आ गया, एवें भी कट्टिया जाता, ਜਾਂ नीचे ले जाके कट लो ਤਾਂ भी। सो 30 चौका 120 आ जाएगा जी, 2 दूनी 4, 4 ते 12, 30 चौका 120, सो 120 सेंटीमीटर जी है नवे सिलेंडर की हाइट आ जाएगी तुहाडे कोल। सो ईजी है जी, कोई दिक्कत वाली गल नहीं कि सौखे तो सौखा कर रहे हैं, फिर भी स्टिल किसी को मुश्किल लग्या कमेंट कर दो, होर सौखे देख लांगे अप्रोच। AP दे कहता AP दे पहले 10 पदों का जोड़। ठीक है जी, सो पहले 10 पदों का जोड़ है तो AP कह दिता ना, तो A कितना आ गया -5 आ गया। ठीक है जी, डी दूजा माइनस पहला हुंदा, ख्याल रखियो दूजा घटाओ पहला, तो दूजा आ एक घटाओ -5, इत्थे बच्चा गलती खांदा जी, इत्थे +5 आया तो इत्थे 3 आ गया तुहाडे कोल। ठीक है जी, सो दूजा घटाओ पहला, दूजा घटाओ पहला, आ वाली चीज़ आ गई जी। जो आ वाली चीज़ आ गई तुहाडे कोल, ठीक है, सो डी की वैल्यू मेरे पास 3 आ गई। ठीक है, 10वीं टर्म कढ़ ला, तो जे T10 कढ़ना होवे तो A + 9D फार्मूला हुंदा। 9 A कौन है पहली रकम, ठीक है, + 9D कितना 3, 9 × 27, 27 चो 5 गए 22, तो थोड़ी 10वीं टर्म 22 आ गई। ठीक है जी, 10वीं टर्म पता लग गई, पहली पता सब कुछ पता है। थोड़ा फार्मूला SN का की हुंदा, SN का फार्मूला हुंदा n/2। ठीक है, पहली टर्म ते लास्ट टर्म। ठीक है, n किनिया ने 10, क्योंकि 10 रकमां ने, बटे 2। पहली टर्म है -5, लास्ट टर्म यानी 10वीं टर्म कितनी कढ़ी है 22 कढ़ी है। ठीक है जी, सो इत्थे 10/2, 22 विचों 5 घटाया 17, 2 एकम 2, 5 दूनी 10, 17 5 85, सो 85 आएगा जी सम, है ऑप्शन हैगी है जी। सो ऑप्शन हैगी है जी, सो तुहाडा 85 सम आ गया जी तुहाडे कोल। सो ईजी तो ईजी वे नाल क्वेश्चन करा रहे हैं जी, और 10वीं दे विच लाजमी 10वीं दे पेपर च इदां दे क्वेश्चन मिलने ने। हुण ओह कहंदा समीकरण विच सिफरां दा गुणनफल अगर थोड़ी इदां दी क्वाड्रेटिक होवे ax² + bx + c, अगर इदां दी क्वाड्रेटिक होवे तां प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हुंदी है c/a। ठीक है, लास्ट वाली ओवर पहले वाली, सो इत्थे लास्ट वाली कौन है c-a। ठीक है, ओवर ए वो होगी a-b, सो c/a नीचे a-b, सो आ वाली ऑप्शन हो जाएगी तुहाडे कोल।
ठीक है जी। सो काफ़ी ईजी क्वेश्चन है जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। सो मैं एक पेज करके सॉल्व करूँगा जी। तो तुसी 10-10 मिनट अपने आप ਨੂੰ देना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ठीक है। जो भी है कमेंट्स 'ਚ लिखते जाना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। तुसी देखियो 15 दिन बाद ਤੁਹਾਡਾ मैथ कितना ਵਧੀਆ हो ਜਾਂਦਾ। ਇਹ द पॉइंट P इज एट द डिस्टेंस 10 सेंट, एक चक्कर ले लिया जी, ठीक है। सो पॉइंट P है ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पॉइंट P इज एट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द, ठीक है, ओरिजिन। माने चक्कर दे केंद्र हो तो 10 सेंटीमीटर की दूरी ते P स्थित है, ठीक है। पी क्यू ते PR स्पर्श रेखावां ने उरों आपां ने एक टेंजेंट ड्रा कर दी, ठीक है, एक इधरों टेंजेंट ड्रा कर दी। सो पी क्यू इत्थे पाता, इत्थे आर पा दिता तुहाडे कोल, ठीक है जी। तो उस तो बाद कहता इफ रेडियस ऑफ सर्कल इज 6, जे सर्कल का अर्ध व्यास 6 है तो इनू इत्थों ज्वाइन कर दिता, आ वाली चीज़ 6 होगी, ठीक है। इनू इत्थों ज्वाइन कर दिता, आ वाली चीज़ 6 होगी। तो जे चक्कर का अर्ध व्यास 6 है, ठीक है, दैन एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कढ़ना है। सो क्वाड्रिलेटरल कढ़न लई तुहाडे कोल सीधा फार्मूला कोई नहीं है, कारण तुसीं तुहानूं ऐ ही नहीं पता क्वाड्रिलेटरल ये बन की रही है, पैलोग्राम है, स्केयर है, रैक्टेंगल है। फिर तुसीं की करोगे, तुहाडे कोल ट्रपीजियम है, दिखण नूं तां मर्जी दिखी जाए, पॉइंट भी देखो ना, तो यदा मतलब तुसीं की करोगे तुहाडे कोल। सो मैं माड़ा जिहा कलर चेंज करदा जी, जस्ट तुहानूं दिखाण लई भी इत्थे सैटिंग इदां बैठू। तुहानूं यह पता भी जे बाहरों स्पर्श रेखा होवे तां इत्थे परपेंडिकुलर हुंदी है, ओके। थोनू आ सारी चीज़ पता है, इहदा नाम असीं ओ रख लिया, ठीक है। आ सारी चीज़ थोनू 10 पता है, आ थोनू पता लग गया 90 का कोण है, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज हुंदा यानी कि करण। तो आपां पाइथागोरस थ्योरम लगावांगे, 90 के सामने करण, करण का स्केयर OP का स्केयर बराबर है की होगा OR स्केयर जमा RP का स्केयर, ठीक है जी। तो ठीक है, RP PR कह लो, कोई दिक्कत नहीं। OP का स्केयर, OP कौन है 10, 10 का स्केयर 100, OR है ना, OR जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल, OR का स्केयर आ गया तुहाडे कोल। तो दिख रहा जी तुहानूं OR आ रहा, OR हैगा 6, 6 का स्केयर, ये बराबर बन गया PR का स्केयर। सो 6 का स्केयर 36, 100 विचों 36 घट जाणगे, PR स्केयर, ठीक है जी। सो PR स्केयर जिहड़ा हैगा तुहाडे पास वो आ जाऊगा 64 ਤੇ PR ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜੂਗੀ 8। तो PR ਦੀ ਵੈਲਿਊ 8 ਆ ਗਈ। ਇਹ ਦੋ ਤਿਕੋਣਾ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਿਕੋਣ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 1/2, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢ ਲਓ, ਸਿਰਫ ਆਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢ ਲਓ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ORP। ਸੋ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ORP 1/2 ਆਧਾਰ ਗੁਣਾ ਲੰਬ, ਆਧਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਆਧਾਰ OR, ठीक है, लंब ले लो OP RP, ठीक है। तो 1/2 आधार, आधार आप ले लिया 6, लंब ले लिया 8, 2 ना करती गुणा, 2 3 6, सो इत्थे आ गया 24, एक ट्रायंगल का 24, दो ट्रायंगल बनिया ने 24 जमा 24, 48 सेंटीमीटर स्क्वेयर, जे सेंटीमीटर तो आ वाला थोड़ा आंसर आ गया। सो ठीक है जी, तुहाडे कोल इत्थे तक 7 क्वेश्चन करते जी। सो जे नवे हो तो तुहाडे कोल शेयर भी कर लियो ते सबसक्राइब भी कर लियो, तुहाडे पास तुहानूं सारी बुकलेट का सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है जी। टीचर नूं हौसला हो जाता तुहाडे पास, सबसक्राइब भी कर लियो, शेयर भी कर दियो, ठीक है जी। सो लाइक और कमेंट करना ना भूलियो, ठीक है। सो कोई लॉस नहीं जाओगे, सब कुछ सोल्यूशन और विद स्टैंडर्ड मैथड्स, एवें नहीं कि तुहाडे कोल एवें आंसर दे देते तुहानूं, ठीक है जी। थैंक यू।